Very good morning, dear student. Today we read page number 56 of lesson 7. See activity number 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watchglass and iodine solution for this activity. Okay, in this activity we require one leaf. Spirit is a solution that used for burning of lamp and also for the boiling of leaf. A beaker, a test tube, burner, water, a watchglass and iodine solution. Okay, now take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf in it. ओके, टेस्ट ट्यूब में हमने जो है वो स्पिरिट ली और उसमें हमने एक लीफ को प्रॉपरली डिप कर दिया. नाउ सी इन दिस वे, दिस इज ए टेस्ट ट्यूब and we add a spirit in this test tube and dip the leaf in it. Then after, place the test tube in a beaker half filled with water. Okay, now heat the beaker till all the green color from the leaf come out into the spirit in the test tube. फिर हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाला और उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को बॉयल करने के लिए, हीटअप करने के लिए रख दिया. देन आफ्टर, फिर उसके बाद क्या होगा, जो लीफ का कलर है वो उस स्पिरिट में मिक्स हो जाएगा. नो टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. ठीक है, तो फिर हमने लीफ को टेस्ट ट्यूब में से निकाल दिया और उसको अच्छे से वॉश कर दिया वाटर के साथ. प्लेस इट ऑन ए वॉश ग्लास. फिर हमने वॉश ग्लास में उस लीफ को रख दिया एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. फिर उसके ऊपर हमने कौन सा सोल्यूशन डाला, आयोडीन सोल्यूशन. सी हेयर, ठीक है, दिस लीफ एंड पोर इनटू डिप्ड इन आयोडीन सोल्यूशन. सो place it on a watch glass and pour some iodine solution over it. What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for the presence of different nutrient. Does this means that the leaf has starch in it? In chapter 2 we saw that the slice of potato also show a presence of starch. ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पोटैटो है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और लीफ में भी क्या होता है, स्टार्च होता है, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड. ओके, सो पोटैटो गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, एंड अनदर थिंग इज आल्सो हेल्प in the preparation of food, that is green colored substance means that is chlorophyll pigment is present in leaf. ओके, और उसके बाद और क्या यूज करते हैं वो खाना बनाने के लिए, दे आल्सो यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन. During the process of photosynthesis, the food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of plants. Okay, understand that? We have seen that the stem supply leaf with water. Okay, stem क्या supply करता है leaf को, water. The leaf use the water to make food. Okay, the leaf also lose water through transpiration. Okay, जो leaves हैं वो water को lose करते हैं through transpiration process. How do the stem and leaves get water? Stem and leaves जो है वो water कैसे लेते हैं? No, that is where the root come in. Okay, so आपको पता ही है कि leaves और water, stem और leaves जो है water कहाँ से लेंगे? Through roots. So root is the present in the base of the plant. Okay, so how do you think this is watering their plant correctly? पहली और बूझो भाई, which part of plant in the soil? ठीक है,
प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो सॉइल में होता है? यू नो वेरी वेल, दैट इज रूट. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. सी इन एक्टिविटी नंबर 6 यू वुड रिक्वायर ए 2 पॉट. ठीक है, आपको 2 पॉट चाहिए. सम सॉइल खुरपी इज रिक्वायर्ड फॉर डिगिंग, मिट्टी खोदने के लिए, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड ए वाटर. द एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट. ठीक है, 4 और 5 स्टूडेंट ने जो है ग्रुप बनाना है. फिर उस एक्टिविटी को करने के लिए उसके लिए आपको चाहिए 2 पॉट. ठीक है, सॉइल चाहिए. ठीक है, और डिगिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? खुरपी, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर. Okay, so select 2 plant of the same kind from an open ground and dig them out with root. ठीक है, 2 प्लांट आपने लेने हैं. ठीक है, उसके लिए आपने एक जो है मिट्टी खोदनी है और उसमें उसकी रूट्स जो है वो दबा देनी है. टेक केयर देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. ठीक है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए उसकी रूट्स. प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए. ओके, तो उसकी जो प्लांट है जो हमने रूट्स के साथ खड़ा हुआ है उसको हमने पॉट ए में जो है वो फिल कर देना है. कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अनदर प्लांट. ठीक है, जो दूसरा प्लांट लिया उसकी हमने जो है वो रूट्स कट कर देनी है. एंड देन आफ्टर प्लांट 18 ने पॉट बी, फिर उसको हमने पॉट बी ने प्लांट कर देना. नो वाटर देम रेगुलरली, दोनों को हमने जो है रेगुलरली पानी देना है. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक. ठीक है, फिर उन प्लांट्स को हमने एक वीक तक जो है वो ऑब्जर्व करना है. और बोथ प्लांट्स बी आर बोथ प्लांट अलाइव. क्या दोनों प्लांट जो है वो सरवाइव करेंगे? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट. ठीक है, दोनों प्लांट्स को हम जो है रेगुलरली वाटर दे रहे हैं बट जो एक प्लांट है उसकी रूट के बिना है. Isn't it? Okay. Does this activity help you to understand the important function of root? Okay. Let us do an activity to study another function of root. Another function of root we study with the help of this activity number 7. We would require a seed of gram. ठीक है, हमें ब्लैक ग्राम चाहिए. एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर. ओके, इसके लिए नो टेक 2 कटोरी यानी कि 2 बॉल्स हमने लिए हैं. प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. ठीक है, उन दोनों में हमने क्या रख दिया है? कुछ कॉटन जो है गीला करके रख दिया. पुट 3 to 4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड द मेज इन अदर. ठीक है, एक कटोरी में हमने जो कॉटन गीला करके रखा उसमें एक में हमने ग्राम्स डाल दिए हैं और दूसरी में मेज की सीड्स डाल दिए हैं. ठीक है, नो कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर एवरी डे. ठीक है, उन सीड्स को हमने जो है वो वाटर की हेल्प से जो है वो वेट रखना है. अनटिल द स्प्रूट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट. ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है उसमें से जो है स्प्रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन. ठीक है, कुछ टाइम बाद आपने जो है वो उस कॉटन में से यंग प्लांट्स को सेपरेट कर लेना है. सी इन दिस डायग्राम. Was it easy to separate the cotton from the root? Why? In activity 6, we could not pull out the plant from the soil. Right, we dug them out. This is because root help them to holding the plant firmly to the soil. Okay, they anchor the plant to the soil. ओके, सो द रूट जो हैं वो प्लांट की हेल्प करती हैं सॉइल के अंदर सॉइल को पकड़ने में. यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स. डू द रूट आल्सो शो ए वैरायटी? लेट अस फाइंड आउट. नो सी इन नंबर एक्टिविटी नंबर 8. Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton.
in the previous activity, do they look like the root? ओके सो आपने ग्राम प्लांट लिया, उसमें आपने यू हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन में से उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है. सो लुक द रूट. हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट? ओके C1, this is the root portion of maize plant and this is the root portion of gram. Okay, so write gram or maize in the blank space in the figure after matching the root with the figure. In what way are the root of gram and maize similar? In what way are they different? किस तरह ये एक दूसरे से जो रूट्स हैं इन दोनों की डिफरेंट है. ओके सो दे सीम टू बी two different type of root. Are there also other type of root? Let us find out.